it is rather more important in our professional life. So आज का ये जो सेशन है हम इंटरैक्टिव रखना चाहेंगे, जिसमें हम this will talk about this meditation and how this meditation is useful for us. So let us see what we are going to do today. सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि आज हम ये सेशन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं. ऑब्वियसली अभी अभी का ही एग्जांपल ले लेते हैं. देयर वाज सम टेक्निकल इशू एंड आई वाज लिसनिंग टू मेनी ऑफ यू. बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था कि व्हेन द सेशन विल स्टार्ट वी आर वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग. मेनी पीपल बिकेम पैनिक एंड सम पीपल वर जस्ट वाचिंग लेट द सेशन स्टार्ट. सो यू नो, whenever we come across this kind of situation, obviously we have to react in a positive way. We have to react in the way our personality is. Okay. Many people were annoying, many people were getting panic, many people were sitting quiet. So it depends on the personality that you have got. And certainly those people were getting panic. They themselves were troubled, they themselves were feeling stressed, burdened. Okay. But those people who were quietly listening to or watching the things that now let the session will start and let the session start and then will participate. Okay. They were quite easy and comfortable. So this is what is the situation today. Not only attending sessions, but wherever we go, हम कहाँ पे भी जाए तो we come across this kind of situations. हमें ऐसी situations face करनी पड़ती है. बहुत सारे समय पे ऐसा होता है कि वी आर अनेबल टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस. बट इन सम सिचुएशंस, स्पेशली let me congratulate all of you for one more reason also, because you have chosen a very uh, eminent, or you can call it as a renowned institute where you are going to have your better bright future. And the reason behind that is obviously you are going to complete your courses, you are going to get your jobs. Some of you may start your careers in startups and even your own business. So many opportunities are there, but while doing all these things, two things are important: that how as a human being, how as a person you project yourself, how you become a good human being, how you become a person who is understood, who is renowned, who is known by all the people around. Means wherever you go, people try to talk with you, people want to have interaction with you, that kind of personality. Obviously for that some certain things are necessary, and this induction program uh, is one of the mediums for that. So let me congratulate the all of you, because your institute has taken this initiative to give you a kind of training that will be lifelong with you and that will really change your life also. So I'll assure you, certainly if you understand today's session, if you practice it for a couple of more days and weeks, certainly you can become a balanced person, you can become the versatile personality as we can. And most important thing is a stress free person, very peaceful person, and the person who can enjoy his or her own life. Okay. And at the same time the person also helps the people around him or her to enjoy their lives. So let us start with today's session. This session will be in two parts. Part one will be the introductory part, theoretical part, and in part two, we'll have some practical, like practical meditation will be there. All right. I hope my screen is visible to everybody. Yes, Thank you. sir. Yes, thank you very Yes, much. Yes, sir. sir. Yes, thanks a lot. So, shall we begin with our today's presentation, today's session? Yes, sir. It's good. Thank you. Yes, Yes. sir. Okay, very good. So that is what we began with. हम इसी चीज से शुरू कर रहे थे अपना प्रेजेंटेशन कि wherever we go we come across this kind of situations. लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, we have to face them and we have to tackle them. But for that
If we are a balanced person, we can tackle them very easily and comfortably without getting discouraged, without getting stressed or imbalanced. We can handle those situations. So, what kind of situations are there that you have to face as students? First of all, you have to learn new topics, new subjects. The stream that you have chosen is a very innovative and really very useful stream, because that's going to be useful for the society, not only for your career, but it will be the benefit of the society that you are going to work. And obviously, in this pandemic situation itself, we have seen that many people working in this field, medical and pharmacy field, they have worked as life saviors, and that noble profession you have chosen. So this is again one more reason for congratulations to all of you, because and to become excel in this field, what you have to do, you have to become a master in this field, and for that you have to have a good personality with you. You have to study a lot, and for that study techniques are necessary. Regarding study techniques, I'll just say two three things. Like, many people, they lose their confidence at the time of examinations. Many people read a lot, study a lot, but at the time of examination they forget some certain things. They are unable to recall the answers. So for that, how to use study techniques is one of the things that we need to learn and develop. Then concentration and memory, these 2 points are also there, that we have to have with us to face all the challenges in the life. Because once we have concentration, once we remember the things, we can become good student by presenting good, either in written language or in spoken or oral language. Along with that, you must have some career skills. Like, means having marks is not sufficient in today's world, as you all of you know. आप सब लोगों को पता है कि सिर्फ मार्क्स होना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपके पास कुछ स्किल्स चाहिए। वो स्किल्स आपको आपका करियर अच्छा बनाने में मदद करते हैं। आपको इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक जॉब के सिचुएशन में हो या आपके बिजनेस के सिचुएशन में हो, काम कैसे करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये सब सिखाने वाले जो करियर स्किल्स है, वो आपके पास होने चाहिए। ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू बिकम ऑलराउंड पर्सनैलिटी, बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एज ह्यूमन बींग हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। उसमें हमारी फैमिली आती है, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, सोसाइटी आती है, कलीग्स आते हैं। सो इन सब के साथ हमारे रिलेशंस भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करने होते हैं। एंड while doing all these things, we have to have personal balance at the level of health. हेल्दी हमें रहना ज़रूरी है, हमारे थॉट्स बैलेंस्ड रहने ज़रूरी है, और एट इमोशनल लेवल ऑल्सो हमारा इमोशनल बैलेंस भी होना ज़रूरी है। एंड देन आर बिहेवियर बिकम्स गुड वन, पॉजिटिव वन। सो ये सब चीज़ें हम कैसे पा सकते हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने पैंडमिक सिचुएशन में देखा कि so many negative situations were there, and we have to go through those situations. Many of us were helpless because uh, there were no substantial solutions for all these things. So इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? And at the same time, we are surrounded by these gadgets, mobile, internet. Everything is not made for us. We are made for all these things. So this addiction is also one of the things which doesn't allow us to concentrate and study as well. ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। सम पीपल आर लेथार्जिक, हम बहुत टाइम पे लेजीनेस महसूस करते हैं। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट. Some people have weak memory, they don't remember at the time of examination. Some people are unable to present in front of people, so stage fear होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करने होते हैं। सो इन सब के लिए सॉल्यूशन क्या है? Obviously we have to understand what our personality is and how we can develop that personality. हमने ये सब चीज़ें देखी कि कंपटीशन होता है, करियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के एस्पिरेशंस भी बहुत सारे होते हैं कि
बेटा आपको ये बनना है, ये करना है, आपका करियर अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए. सो ऐसी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है. उसकी वजह से भी समटाइम्स वी फील इम्बैलेंस्ड. Health problems are there, physical problems are there. We do not find ourselves at the healthy level, physically, mentally, means at the level of thoughts and emotionally also. और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आता है. लेकिन वो स्ट्रेस अगर आपको बीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो जाननी चाहिए. तो पर्सनैलिटी कैसे जान सकते हैं हम, हमारी पर्सनैलिटी है क्या. हम जो दिखते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, या जो कुछ हेयर स्टाइल वगैरह है, मेकअप है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी वो नहीं है. आपकी आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट वन. लाइक योर बॉडी इज़ वन पार्ट, आप कैसे दिखते हो, आपकी हेल्दी हो या नहीं. माइंड इज़ अनदर पार्ट, आपके थॉट्स कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स वॉट एवर थॉट्स यू हैव. इमोशनल लेवल आप इम्बैलेंस्ड हो क्या, बैलेंस्ड हो क्या, ये भी आपको देखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. इमोशनल लेवल इन द सेंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमें डर लगता है प्रेजेंटेशन देना हो तो. देर इज स्टेज फियर. समटाइम्स वी फील जेलस. अगर हमसे ज़्यादा हमारे फ्रेंड को मार्क्स मिलते तो वी फील जेलस, दैट जेलसी इज देयर. तो सो दैट काइंड ऑफ इमोशंस आर देयर, वी आर अनेबल टू बैलेंस दोज इमोशंस. और इवन अगर टाइम दिया है दिस पर्टिकुलर, एंड इफ देर इज सम टेक्निकल इशू, we unnecessarily get imbalanced at the level of emotions. So that is also one of the things that happens if we are not balanced at the level of all these things. And the most important thing is spirit. Spirit means your soul, your personality, actual personality that you have, the original qualities that you have. So how those qualities can be developed, those qualities which are by birth from you, like a child has some certain qualities. जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चे में इनोसेंस होता है. तो हमें पता है कि हम हर एक बच्चे में वो होता है, लेकिन बाद में इस सिचुएशन में, वर्ल्ड में आने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद हमें पता चलता है कि हम वो क्वालिटीज़ भूल जाते हैं. हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है वो हम भूल जाते हैं. सो वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी हमें अपने अंदर कौन सी पता चाहिए. उसके बाद ये हुआ हमारा इनर पर्सनैलिटी का पार्ट. आउटर पर्सनैलिटी होती है कि सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, हमारे कलीग्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन कैसा है, हम उनको उनको कितना केयर करते हैं, उनके बारे में हम कितना जानते हैं, उनको कितना सपोर्ट करते हैं, दैट काइंड ऑफ रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर. करियर, हमारा अच्छा करियर होने के लिए, जैसे अभी हमने देखा कि सिर्फ मार्क्स होना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ स्किल्स भी हमारे साथ होनी चाहिए. हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी है जो हमें जानना ज़रूरी है, वो भी आपको करियर बनाने में मदद करती है. मटेरियल चीज़ें जैसे कि कार बंगलो काइंड ऑफ ड्रीम्स आर देयर. हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो लग्जरियस लाइफ भी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो this is outer balance. So if you are able to balance yourself at all these levels, then certainly you can become a total personality. But ये कर हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को, ये बैलेंस कैसे हम पा सकते हैं. सो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि जो भी इम्बैलेंसेस आते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो स्ट्रेस कहाँ से आता है, उसकी जड़ें क्या होती है, और हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे पर्सनैलिटी पे, फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे उसका क्या असर होता है, हम ये सब चीज़ें देखेंगे. जनरली स्ट्रेस बाहर की चीज़ों से नहीं आता है. जैसे बाहर बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, the atmosphere is not good, pollution is there, corruption is there, and so many things are happening which are not good for us. But that is not, they are not the reasons, they are equal for each and every person. जैसे टीचर होते हैं वो हर स्टूडेंट को, मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, एंड टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक की ग्रास्पिंग पावर अलग है, समझ लेने की पावर अलग है, कैपेसिटी अलग है, उसकी तरह से होता है. और इट हैपन्स विद इन देम. वो स्टूडेंट को अंदर से जो वो सीखते हैं
वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनकी हर एक का लर्निंग अलग है। वैसा ही स्ट्रेस का होता है। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll continue with this because I think there is some technical issue again for presentation, but anyway, we'll continue this. So stress आता है और वो स्ट्रेस को कैसे बीट करना हम ये देख रहे थे। तो स्ट्रेस बाहर की चीज़ों की वजह से नहीं आता, स्ट्रेस अंदर की चीज़ों की वजह से आता है। हम कौन सी भी सिचुएशन हो उसको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, उससे स्ट्रेस आता है, उससे बर्डन आता है। ठीक है, अगर हम लेक्चर शुरू होने में कुछ टाइम है तो हम अगर शांत बैठे रहे, वेट करते रहे, तो ऑब्वियसली वी डू नॉट फील स्ट्रेस्ड। लेकिन हम बार बार वही क्वेश्चन खुद को या सामने वालों को या बाकी अटेंडेंस को पूछ रहे हैं, तो क्या होता है, ऑब्वियसली हम अपना टेम्पर बढ़ाते हैं, हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न फॉर स्ट्रेस। बाहर की चीज़ों की वजह से नहीं होता ये, हमारे अंदर हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। और ये स्ट्रेस को अगर आपको बीट करना है तो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे संस्कृति में बहुत अच्छी चीज़ें सुझाई गई है। उसमें सबसे अच्छा है कि यू नो योर पर्सनैलिटी एंड बैलेंस योर पर्सनैलिटी। और उसके लिए आपके अंदर जो सिस्टम है वो आप समझ लो, उसके साथ आप ग्रो हो सकते हो, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकते हो। तो यहाँ पे बताया है कि नो दाई सेल्फ, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो भी फिलोसॉफी वाले लोग थे या सब कुछ, सब जो गुड पर्सनालिटीज एज वी कॉल देम, सब लोगों ने हमें बताया है कि सर हेलो यस। हाँ यस सर। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ या स्क्रीन, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, Okay, sir. ओके सर। now just focus on the audio part. Just try to listen to me and then we'll have some practical. Okay, so हमारे अंदर जो सिस्टम है, बेसिकली ये सिस्टम आप सब लोगों को अभी मैं दिखाना चाहता था, लेकिन स्क्रीन इज नॉट देयर। जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई टू शेयर अगेन। अब दिख रहा है सर स्क्रीन? Yes, sir, visible. Hello, sir. Hello, excuse me. Hello. Yes, yes, I am audible. Yes, Thank you. yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir, you are audible. Okay, so shall we continue? Yes, Yes, you Hello. can continue, sir. Somebody is saying hello, hello again. That's why. Uh, Sir, Okay, can we mute the student? students, You if you can have any continue, sir. problem, I okay, request all the students, students. just listen to me. If you have any problem, you can use chat box option. Just message your problem. We will assist you. And Yogi sir, you can continue. I think. Thank you, sir. Okay. थैंक यू। तो हमारे अंदर का सिस्टम हम देख रहे थे, ये थोड़ा सा जान लो, इट्स अ टेक्निकल थिंग।
थोड़ा इसके ऊपर जस्ट ध्यान दो आप कि हमारे इफ यू कैन सी दिस सटल सिस्टम, all of us have this subtle system within us which has these three important channels. One is left sympathetic nervous system, which is in blue color, and another one is in yellow color, and it's right sympathetic nervous system, and one more is there at the center. This is central nervous system, जिसको हम मेडिकल के लैंग्वेज में लेफ्ट सिंपैथेटिक, राइट सिंपैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में या योगा की भाषा में नाड़ियाँ कहा जाता है। दाई नाड़ी, बाई नाड़ी और ये मध्य नाड़ी, और इनके साथ कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में प्लेक्सेस बोला जाता है, और योगा के लैंग्वेज में इसको चक्र बोला जाता है। तो ये एनर्जी सेंटर्स या चक्र जो होते हैं वो 7 होते हैं। पहला है, एक है मूलाधार। दीज आर दी संस्कृत नेम्स, यू कैन even if you forget them, don't worry, just try to understand the system only. Okay, Mooladhara, then second one is Swadhisthana, this is Navi, then heart chakra is there, this is Vishuddhi, Agya and Sahasrara. All these chakras are there, and along with all these centers and channels, we have one more energy situated at the backbone, end of the backbone. हमारी रीढ़ की जो आखिरी वाली हड्डी होती है, जिसको हम सैक्रम बोन भी बोलते हैं, यहाँ पे ये कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर होती है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये शक्ति जागृत होके इन सब चक्रों को शक्ति देती है और अपने सर के ऊपर से, तालु भाग बोलते हैं हम इसे, इसके ऊपर जाती है और हमें दोनों हाथों पे और हमारे तालु के ऊपर, सर के ऊपर ठंडी लहरियाँ महसूस होती है। इसके यूज से या इसके मदद से अगर हम रोज मेडिटेशन करें, मॉर्निंग 10 मिनट, इवनिंग 10 मिनट, जैसे आपको टाइम मिले, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ये जो बेसिक थिंग है, अभी मैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विल सी दिस इन द एनिमेशन फॉर्म। दिस इज शॉर्ट एनिमेशन, एनिमेटेड क्लिप, एंड देन विल सी कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये कुंडलिनी जो होती है हमारे अंदर, वो कैसे जागृत होती है, और ये सब चक्रों को एनर्जी देते हुए, एनर्जाइज करते हुए, उनको बैक टू ओरिजिनल पोजीशन लाते हुए हमारे सर के ऊपर जाती है, और हमें ये होने के बाद हमें दोनों हाथों पे, हाथों की हथेलियों पे और तालु भाग के ऊपर हमें ठंडी लहरियाँ महसूस होती है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। ओके, ये होने के बाद एक्चुअल हमें क्या बेनिफिट होता है, हाउ डू वी बिकम गुड पर्सन? सो दिस इज कॉल्ड एज सहयोगा मेडिटेशन. इट्स रियली वेरी एफर्टलेस एंड स्पॉन्टेनियस. इट हेल्प्स अस टू बिकम थॉटलेस. हमें थॉटलेस होने में मदद करता है, क्योंकि होता क्या है, आइदर हम पास्ट का या फ्यूचर का सोचते रहते हैं. हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वो एक तो पास्ट के होते हैं, भूतकाल के होते हैं, या फ्यूचर के होते हैं, भविष्यकाल के होते हैं. तो हम जब थॉटलेस होते हैं
तब हम प्रेजेंट में होते हैं. So you can see this pendulum moving from the thoughts of past to the future, and at very less time we are in the present. But जब हम ये सब होता है तो हमारे अंदर पीसफुलनेस महसूस नहीं कर पाते. जब हमारे थॉट्स होते हैं, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, ये अगर होते रहे तो अगर फ्यूचर के थॉट्स रहे तो हम ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, हमें ये करना है वो करना है, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में आप कुछ नहीं करोगे. और पास्ट के विचार होंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, मैंने ये एंजॉय किया था, वो किया था. तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टुडे. आपको प्रेजेंट मोमेंट में आप अभी क्या कर रहे हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है. क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी हो और पढ़ाई करते हुए आपको अगर फ्यूचर प्लानिंग करोगे, कल मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, एक महीने में मैं ये करूँगा और दूसरी चीज़ करूँगा, सो अब पढ़ाई होगी क्या आपकी अभी इस मोमेंट में? ऑब्वियसली नॉट. अगर आप पास्ट का सोचोगे कि पिछले साल मैंने ऐसी पढ़ाई की थी, वैसी की थी, मैंने पढ़ाई में इतने मार्क्स लाए, इतने लाने चाहिए थे, अभी इस बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है. अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका अटेंशन कहाँ होना चाहिए? अभी दिस मोमेंट आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे आपका प्रेजेंट अटेंशन होना ज़रूरी है. और उसके लिए आपके मन में अगर कोई विचार नहीं हो ज़्यादा, अगर आप थॉटलेस बन सकते हो तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और दैट इज़ स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम इन द मेमोरी. This is what we have experienced because we have been conducted many Sahaja Yoga meditation programs in schools and colleges, and I am happy to share with you that Sahaja Yoga meditation is practiced in more than 150 countries, and that is free of cost. There's 150 कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं. दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने नहीं पड़ते. तो ये कैसे होता है थॉट्स के बारे में हम अगेन विल गो फॉर वन मोर स्मॉल वीडियो क्लिप. हमारे अंदर थॉट्स कैसे आते हैं और वो हमें डिस्टर्ब कैसे करते हैं, और कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमारे थॉट्स कम कैसे होते हैं और हम अपना लाइफ कैसे. Meditation. What a relaxing experience. But what looks peaceful outside, is it always the same within? The human awareness is like an egg, full of infinite potential. When we meditate, we come to the present, where the light of truth shines upon us. But in practice, this does not happen. Thoughts from the past and future cloud our mind and disconnect us from the present. We try to stop them, but as soon as we stop one thought, another enters. This goes on, and instead of relaxing, we get exhausted. Meditation seems impossible. But what if we could stop our thoughts without putting any effort? Would you like to try this effortless meditation? Then come along and learn Sahaja Yoga meditation, which begins with the awakening of the power within us called Kundalini, which once awakened, our awareness goes beyond thoughts. We are freed from all the bondages of anger, greed, and fear. In this serene light of truth, our attention starts evolving. We achieve freedom in the true sense. Come and experience the joy of Sahaja Yoga meditation. आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि थॉट्स हमारे अंदर जब आते हैं तो हम कैसे डिस्टर्ब रहते हैं, हम कैसे स्ट्रेसफुल रहते हैं. तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सिर्फ सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट देने हैं. उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. ये बाकी सब सटल सिस्टम के बारे में हम आगे जानेंगे. I think this is time to practice it in at this time. हम ये प्रैक्टिकली करके देखें. इस प्रैक्टिकली हम ये मेडिटेशन करके देखते हैं.
तो हमें उसके बाद आशीष सर आई थिंक ज्वाइन हो रहे हैं, so I request organizer to make him present, so if we go for the practical part of this. Sir, your voice is breaking. No, sir, some student is there. His voice is there. Therefore, I think. Can you make Ashish sir presenter? Sir, I have already made him Okay. presentee. He can check and do the Okay. necessary thing. Okay. Yeah. Ashish sir, you can unmute and will you please continue this part? Practical meditation. यस श्योर। Okay. तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर बढ़। थैंक यू योगी सर। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने सेशन का कुछ पार्ट मिस किया हो, अटेंड ना किया हो, ध्यान ना दिया हो, डजंट मैटर। Hello, Ashish sir. Hello. I think Ashish sir's voice is not there. Ashish sir, can you hear us? Okay, anyway, when he'll join, we'll go back to him. You were saying that whatever part we have covered till the point, आप लोगों को अगर वो समझ में भी नहीं आया हो या आप लोगों ने ठीक से सुना भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं आप वो ठीक से समझ के करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। So I request all the students, all the participants, and all the teachers also to take these next 5 to 10 minutes for yourself, for your own development and your benefit, because they are very important. You can call them as life change, because we also got to know about Sahaja Yoga meditation through this kind of program. And since then, really, we have learned a lot about our own life, about this yoga meditation, and now we are enjoying our lives. So really it's very useful and uh, joyous to meditate every day. So try to understand what this meditation is and how it can be done. Okay, next 10 minutes pay attention and do it practically. सो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे हमने देखा कि कुंडलिनी जागृत होना जरूरी है और वो सर के ऊपर से जाके पूरे विश्व में जो परमात्मा की या नेचर की कह सकते हैं, गॉड की कह सकते हैं, गॉड अलमाइटी की जो पावर फैली हुई है उससे हमारी कुंडलिनी जब मिलती है तो उसे योग होना कहा जाता है। ये योग होने के बाद हमें हमारे दोनों हाथों पे, हथेलियों पे और हमारे सर के ऊपर, तालू भाग के ऊपर ठंडी लहरियां में, और वो ठंडी लहरियां अगर हम महसूस कर सकते हैं, we'll check that first of all. Okay, so let us see how it happens. Am I audible?
Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. Yes, sir. ओके, सो हमें मेडिटेशन की कुछ स्टेप्स करनी है। जो पहले हम अभी पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमारा राइट हैंड हमें हार्ट पे रखना है, लेफ्ट साइड। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स कहेंगे। यहाँ पे मैं श्री माता जी बोलूँगा, आप उसके बाद रिपीट करेंगे अपने मन ही मन में। यू कैन से मदर, यू कैन से ओ गॉड, वॉट एवर गॉड यू worship. Accordingly, you can say the name. But as a sense of respect, I am going to say Srimati. Okay. So that doesn't matter. You just have to say it by heart. You have to pray. That's all. So यहाँ पे एक राइट हैंड रख के हम प्रेयर करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड हमारा ऐसे ही लैप में होगा। और दूसरी जो स्टेप है वो हमारा राइट हैंड हम ऐसे हमारे सर के, हमारे फोरहेड पे रखेंगे, कपाल पे रखेंगे। यहाँ पे हम एक प्रेयर कहेंगे और उसके बाद हमारा वही हाथ, राइट हैंड, हम अपने सर के ऊपर तालू भाग पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे कुछ प्रेयर्स कहेंगे। प्रेयर्स कहते हुए हमारा हाथ अपनी जगह पे थोड़ा सा मूव करेंगे क्लॉकवाइज। और हम चेक करेंगे कि इफ वी आर getting some cool sensation, cool breeze, cool air coming out of our head. हमारे सर के ऊपर कुछ ठंडी लहरियाँ हम महसूस कर रहे हैं क्या, ये हम चेक करेंगे। इसको महसूस करेंगे हमारे हाथ पे और अपने सर के ऊपर। सो दिस इज हाउ इट इज़ ईजी। एंड उसके बाद हम 2 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे। ये सब चीज़ें जो है हम आंखें बंद करके करेंगे। एक बार आप ठीक से देख लेना। फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड ऑन हार्ट, कुछ प्रेयर्स कहेंगे हम। उसके बाद राइट हैंड ऑन फोरहेड, कपाल पे हम अपना दाहिना हाथ रखेंगे। उसके बाद सर के ऊपर रखेंगे और हमारा हाथ ऐसे 1-2 इंच ऊपर नीचे करके हम चेक करेंगे इफ वी आर गेटिंग सम कूल ब्रीज, ठंडी हवा हम सर के ऊपर महसूस कर रहे हैं। और हमारे दोनों हाथों को हमें ऐसे अपवर्ड, आकाश की तरफ करके रखना है। विल कीप देम इन आवर लैप। तो चलो आंखें बंद करते हैं धीरे धीरे हम, और विल प्रे श्री माता जी, विल प्रे गॉड, विल प्रे द गॉड ऑलमाइटी फॉर दिस सेल्फ रियलाइजेशन और कुंडलिनी अवेकनिंग। तो हमारे दोनों हाथ सामने रखे हमने लैप में। आप जहाँ पे भी बैठे हो कंफर्टेबली बैठो। जमीन पे बैठे हो तो आप आराम से बैठना। चेयर पे बैठे हो तो आपके पैर जमीन पे रखे। और नाउ विल कीप आवर राइट हैंड ऑन द हार्ट। अपना दाहिना हाथ हम हार्ट पे रखेंगे। विल प्रे हियर, ओ मदर एंड योर सोल। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हार्ट पे हाथ रख के हम और कुछ बार रिपीट करेंगे। श्री माता जी, ओ गॉड ऑलमाइटी, आई एम अ प्योर सोल। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। हम वही हाथ अब फोरहेड पे रखेंगे, अपने कपाल पे। यहाँ पे हम प्रे करेंगे। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव एवरीबॉडी। मैंने सबको क्षमा कर दिया है, कृपा कर आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने सबको क्षमा किया है,
आप भी मुझे क्षमा करें। Now we'll keep right hand on the top of our head. यहाँ पे हम उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे जगह पे, और हाथ क्लॉकवाइज हमारा स्किन हिलेगा, मूव होगा। ऐसे तरीके से मूव करते हुए प्रे करेंगे। श्री माता जी, प्लीज अवेकन कुंडलिनी विद इन अस। श्री माता जी, प्लीज हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, कृपया उसको जागृत करें और हमें उसकी उस शक्ति को महसूस कराएं। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन प्रदान करें। और हमारा पूरा अटेंशन हम थोड़ी देर अपने सर के ऊपर ही रखेंगे जहाँ पे हाथ रखा है, और धीरे से अपना राइट हैंड 1-2 इंच हम ऊपर उठाएंगे और चेक करेंगे हमारे सर के ऊपर से, तालू भाग से कुछ ठंडी लहरियाँ निकल के हमारे हाथ को महसूस कर रहे हैं क्या। हम वो चेक करेंगे, हाथ ऊपर नीचे या आगे पीछे करके देखें। जहाँ तक आपको ये महसूस होता है वहाँ तक आप हाथ ऊपर ले सकते हो। You can check these cool vibrations or cool breeze coming out of your head and see if you are getting some coolness on your head to your palm. आपको हथेली पे भी आप महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखेंगे और हमारे दोनों हाथों को हम अपने गोदी में रखेंगे, लैप में रखेंगे। हमारा पूरा अटेंशन दोनों हथेलियों के ऊपर, अपने फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे रखेंगे और सर के ऊपर रखेंगे और देखेंगे हमें क्या महसूस हो रहा है। अभी हम अपना लेफ्ट हैंड सर के ऊपर रखेंगे ऐसे 1-2 इंच ऊपर, और जो हमें राइट हैंड में महसूस हुआ वही अपने बाएं हाथ में भी महसूस हो रहा है क्या, वो चेक करेंगे सर के ऊपर। अभी हम लेफ्ट हैंड को भी अपने गोदी में रखेंगे और अपना पूरा चित्त, पूरा अटेंशन दोनों हथेलियों पे और सर के ऊपर स्थिर करेंगे। Okay, now you can slowly open your eyes. I hope सब लोगों को कुछ दोनों हाथों पे और सर के ऊपर महसूस हुआ होगा। कोई पार्टिसिपेंट अगर एक एक करके अनम्यूट करके 1-2 पार्टिसिपेंट भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि दोनों हाथों पे और सर के ऊपर क्या महसूस हुआ। तो प्लीज यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस वॉट एवर यू हैव फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हेड एंड बोथ द पाम्स। आपको कैसे महसूस हुआ? Sir, यस, sir, I feel positive vibes. ओके, वेरी गुड। एनी अदर पार्टिसिपेंट? ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को ये करने के बाद कैसे लगा? हैव यू सीन हाउ योर थॉट्स स्टॉप्ड? आप लोगों ने ये रिलैक्स लगा। यस, यू माइट हैव फील्ड रिलैक्स्ड, वेरी गुड।
So this relaxation is there only after doing this meditation for 2 or not more than 2 minutes. हमने ये सिर्फ कितना 2 मिनट किया, उसके बाद हमें दोनों हाथों पे और सर के ऊपर ही महसूस हुआ और रिलैक्स लगा, हमारे अंदर के जो थॉट्स है वो कम हो गए। तो अगर हम ये रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और इसका बेनिफिट हमें और क्या होता है वो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। जैसे शुरू में हमने देखा कि हमारे अंदर जो कुछ भी सटल सिस्टम है, तो वो सटल सिस्टम में कुछ एनर्जी सेंटर्स है और कुछ चक्र जिसे बोला जाता है वो है और नाड़ियाँ हैं। तो channels and chakras are there. These energy centers help us to protect our organs in our body. हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको संभालने का काम ये चक्र करते हैं, उनको एनर्जी देने का काम ये चक्र करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र हो तो वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वो एक्सक्रेशन की एक्टिविटीज, स्मेलिंग, ये सब हमें इस चक्र की वजह से मिलता है। जैसे स्वादिष्टान चक्र है वो हमारा लीवर संभालता है। लीवर का क्या काम होता है? लीवर हमारा अटेंशन स्थिर करता है। हमारा जब भी हम पढ़ाई में बैठते हैं और हमारा अटेंशन इधर उधर जाता हो, अगर ये चक्र पे आप मेडिटेशन करोगे तो आपका अटेंशन अपने आप स्थिर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चक्र हमारे अंदर एक फिजिकल बैलेंस लाते हैं क्योंकि दे कंट्रोल ऑल दीज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमें हार्ट पे अगर कुछ प्रेशर महसूस होता है या जब भी कुछ डर लगता है, अगर कुछ प्रेजेंटेशन होना देना हो, कुछ लोगों के सामने बोलना हो या आंसर के बारे में अगर हम श्योर नहीं है तो हमें थोड़ा सा फियर महसूस करते हैं हम। तो उसको अगर आपको ओवरकम करना है तो आपके लिए आपको ये चक्र पे मेडिटेशन करेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और आपके अंदर का जो कुछ भी आपके अंदर फियर है वो निकल जाएगी। उसी तरीके से प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि दे आर अनेबल टू गिव प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देयर लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, दे हैव सम फियर अबाउट दैट आल्सो। उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे आपको इंटरव्यू में जाना हो तो कैसे बोलना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, इसके बारे में आपको ये जो ब्लू कलर का विशुद्धि चक्र होता है वो हेल्प करता है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंटेशन। देन चिड़चिड़ापन या किसी को दूसरे लोगों को तकलीफ देने के बारे में सोचना, रिवेंज हम जिसे बोलते हैं, वो अगर वैसी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, तो उनको कंट्रोल करने का काम जो है ये यहाँ पे जो चक्र होता है आज्ञा चक्र वो करता है, क्योंकि दैट लुक्स आफ्टर द हाइपोथैलेमस एंड ऑप्टिक काइज़मा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमने एक प्रेयर की यहाँ पे कि मैंने सबको क्षमा की। तो ऐसे हर एक चक्र की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है और उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस है। उनकी क्वालिटीज़ और फंक्शंस अगर हम समझ जाएं इस मेडिटेशन के माध्यम से, हम उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और हम अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। उसके लिए हमारी रेगुलर मेडिटेशन करने की सिर्फ ज़रूरी है। हम सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमें वो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इज़ देयर, हमारे थॉट्स बैलेंस हो जाते हैं, हमारे चक्रस, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको संभालते हैं और हमारे इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सेंटर्स की क्वालिटीज़ हमें हेल्प करती है। और ऑब्वियसली ये सब होने के बाद हमें अंदर से, अभी जैसे 2 मिनट में हमें शांति महसूस हुई, वो शांति हम अंदर से महसूस कर सकते हैं एंड वी बिकम अ जॉयस पर्सन। हमारे अंदर से ये सेटिस्फैक्शन आता है कि नाउ आई एम बिकमिंग अ गुड पर्सन, माय पर्सनैलिटी इज बिकमिंग अ बैलेंस्ड वन। तो हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हम डिस्क्रिशन, डिसीजन मेकिंग जो होता है, और कंफ्यूजन नहीं रहता हमें कि ये करो या वो करो। सो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजी बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब एक्शंस, हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो जाता है और हमारी पॉजिटिव एक्शंस देखने को मिलती है। और एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर मेनी इनक्यूरेबल डिसीजेस that can also be cured with the help of this regular meditation, and we have seen some people where they got cured with the help of meditation, especially diseases like diabetes, cancer, migraine, blood pressure. That kind of diseases can also be cured very easily by a regular meditation.
And I would like to share with you that during this pandemic period, many people, those who are meditating regularly, they did not get affected by COVID. And it's really noteworthy that even very few people got affected, but they got recovered very fast, because this immune system within us that supports us and helps us. ऑब्वियसली आप सब लोगों को ये बाद में पता चलेगा कि कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, तो रेगुलर वर्क लाइफ होता है, उसमें बैलेंस कैसे बनाना। ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि रेगुलर जो आपका वर्क होता है, स्टडीज़ आर देयर, प्रेजेंटेशंस आर देयर, सम अदर एक्टिविटीज़ आर देयर, स्किल डेवलपमेंट इज़ देयर। सो ये सब करते हुए आपके लाइफ में बैलेंस अगर आपको लाना हो तो यू जस्ट हैव टू मेडिटेट रेगुलरली। देन आप अगर अच्छा पर्सन बनते हो, आप अगर खुद को जानते हो, तो आप आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या बाकी सब लोगों को आप अच्छे से जानने लगते हैं, क्योंकि आप कौन हो ये आपको पता चलता है, आपकी क्वालिटीज आपको पता चलती है। देन ऑब्वियसली इसकी वजह से आपकी काम करने की जो कुछ भी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। किसी चीज़ को ख़राब करने की जगह पे आप ये सोचते हैं कि मैं अगर नेगेटिव भी सिचुएशन है तो उसको अच्छा कैसे करूँ। दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज देयर, पॉजिटिव थिंकिंग इज देयर। और आपके बिहेवियर में, आपके हर एक चीज़ एथिकल पार्ट आ जाता है। आप अच्छा ही सोचोगे, किसी का बुरा आप कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि यू नो योर एनर्जी गाइड्स यू, द पावर विद इन यू दैट गाइड्स यू। एंड सर्टनली जो कुछ भी वर्क प्रेशर होता है वो कम होकर आप एक डायनामिक एंड क्रिएटिव एंड बैलेंस पर्सन बनते हैं। अगर हम बैलेंस्ड पर्सन क्यों बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहिए? बैलेंस्ड पर्सन नहीं होते हम तो क्या होता है, एक तो लेफ्ट साइड का, अगर हम लेफ्ट साइडेड पर्सन बने, जैसे हमने देखा कि ईड़ा नाड़ी है जो हमारा पास्ट संभालती है, जो हमारा इमोशनल साइड संभालती है, अगर वो इम्बैलेंस हो तो हम लेथार्जिक महसूस करते हैं, हमें लेजीनेस हम महसूस करते हैं, मैं दिन भर सोया रहूँ, कुछ ना करूँ, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर। और हमने शुरू में देखा कि हम पास्ट के विचार करते हैं तो हम लेफ्ट साइड का यूज़ करते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो भी हम लेफ्ट साइड का यूज़ करते हैं, और ये हमारे पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई पर्सन ऐसा हो जो दिन भर सोया रहे, या हमेशा पास्ट के बारे में सोचे, ज़्यादा इमोशनल हो, या डिप्रेशन में रहे, अकेला रहना पसंद करे। ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं होते, और हमें भी वो बनना पसंद नहीं होता। वैसे उसी तरह से हम राइट साइडेड पर्सन बनना भी पसंद नहीं करेंगे, या किसी राइट साइडेड पर्सन के साथ काम नहीं करना पसंद करेंगे। राइट साइडेड पर्सन का क्या होता है, दैट पर्सन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस लेफ्ट साइडेड पर्सन। वो बहुत सारा प्लानिंग करता है, हमें ये करना है, वो करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज ये होने के बाद वो कंटिन्यूसली इज वर्किंग more than his capacity. So that is also a kind of imbalance. फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होता है, बहुत सारा प्लानिंग होता है, बहुत सारा काम होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट पर्सन बिकम्स एग्रेसिव। वो किसी की सुनता नहीं है, एंग्री होता है, डोमिनेटिंग होता है। सो वी इवन डोंट लाइक टू बिकम दिस राइट साइडेड पर्सन। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो वी बिकम दिस बैलेंस्ड पर्सन। The person which is accepted and which is liked by each and every person around us. So this ओके, सो हमें बैलेंस पर्सन बनना जरूरी है, और हम वो बनते हैं। आई होप द स्क्रीन इज अगेन विजिबल टू यू। ठीक है? Yes, sir. It's visible. His Yes, sir. thinking is, the person is peaceful because he meditates regularly. His thoughts are, he is thoughtless. Many times unnecessary thoughts are not there. He is emotionally stable. He is in complete balance. And therefore everybody likes this kind of person. Even आपको अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हो तो आपका प्लेसमेंट अच्छा होता है, आपको जॉब में अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिलता है। आप ग्रोथ भी जो होता है आपको, आपकी वो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी, बिकॉज यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। किसी भी चीज़ में अगर बैलेंस नहीं हो
तो दैट चीज़ डजेंट वर्क। जैसे गाड़ी के 4 पहियों में से अगर 2 पहिए या 1 पहिया ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो गाड़ी सीधे से नहीं चल सकती। उसी तरह से अगर हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं हो, हमारे लाइफ में ये सब क्वालिटीज़ नहीं हो, तो इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कोप अप विथ द सिचुएशंस अराउंड। तो स्ट्रेस ऑब्वियसली हम फेस करते हैं तब। ऐसा नहीं कि बैलेंस्ड पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, अंदर की शांति या इमोशनल स्टेबिलिटी, इनकी वजह से वो स्ट्रेस मैनेज करना दैट पर्सन उस पर्सन के लिए बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इसलिए हमें बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनना ज़रूरी है। और ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हेल्थ हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स आर देयर। हमने अभी देखा कि मेंटल, फिजिकल और इवन साइकोलॉजिकल लेवल वी बिकम, और इमोशनल लेवल वी बिकम बैलेंस्ड पर्सन। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर देयर, हमारा बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि हमें पता चलता है हमें कैसे बिहेव करना है। वो डिसीजन मेकिंग एंड विजडम हमारे अंदर आता है। हम रिलैक्स रहते हैं, किसी भी सिचुएशन को अननेसेसरी रिएक्शन नहीं देते हैं, रिलैक्स रहते हैं, हमारा एन्जॉइंग एटीट्यूड होता है। जो कुछ भी सिचुएशन हो, नेगेटिव भी हो, तो हम काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। उसके बाद हमारी जो कुछ भी गलत आदतें हैं वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप चली जाती है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ओन पर्सनैलिटी। हमारे खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है, और हम हमारी जो कुछ भी आदतें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक करके छूट जाती है, क्योंकि हम अच्छे लोगों के कंपनी में आ जाते हैं। और जैसे स्टूडेंट एज में जो ज़रूरी है वो बेसिकली confidence, concentration and memory. These things are really very important because they help you a lot for excel in the studies. ऐसे बहुत सारे benefits है जिसके लिए अगर आप रेगुलर ये मेडिटेशन करते हैं तो आपको इजीली आप कर सकते हैं। आई होप this is all from my side. I'll just take 2 minutes to help you to meditate at home. If you have some questions after this, you can ask those questions. हम फिर से 2 मिनट एक मेडिटेशन का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि घर पे अगर हमें ध्यान करना है तो कैसे करें। तो अगर हम कंफर्टेबल जहाँ पे आपको पॉसिबल है, जैसे चेयर पे हो या ज़मीन पे हो, जहाँ पे आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, वैसे बैठ जाइए। दोनों हाथों को हमें अपनी गोदी में रखना है, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, इधर लास्ट पिक्चर ही है। और उसके बाद हमें शुरू में हमारी दोनों जो चैनल्स है, लेफ्ट एंड राइट चैनल, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और उसके बाद हम दोनों हाथ सामने रख के मेडिटेशन, आंखें बंद करके, हमारा पूरा अटेंशन है ये सर के ऊपर, यहाँ पे ऐसे रख के हम अटेंशन रखना है हमें, ठीक है। तो मेडिटेशन कर सकते हैं। सो लेट अस डू दिस। हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्राई करें, ठीक है। दोनों हाथों को हम सामने रखेंगे पहले अपनी गोदी में, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। हमारा पूरा अटेंशन हमारे अंदर दोनों हथेलियों पे, फिंगर टिप्स पे, और हमारे सर के ऊपर। और यहाँ पे हम मन ही मन में आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। ओ मदर कुंडलिनी, प्लीज टेक अस इनटू मेडिटेशन। ओ कुंडलिनी, कृपा कर आप हमसे ये मेडिटेशन, ये जो ध्यान है वो करवा लें। Now just see if you are feeling some cool breeze, cool air coming out of top of your head and both the palms. आप अभी जस्ट महसूस करें कि दोनों हथेलियों पे और सर के ऊपर आपको क्या महसूस हो रहा है। We'll sit in this position for a couple of minutes and we'll try to check whatever is happening on the top of the head and both the palms.
हम अपनी अभी धीरे से आंखें खोलेंगे. दिस इज हाउ दिस मेडिटेशन इज रियली वेरी इजी. तो सिर्फ आपको इतना करना है, जितनी देर आप बैठ सकते हो, 10-15 मिनट अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आपको टाइम मिले. मॉर्निंग में उठने के बाद आप बेड में ही बैठ के कर सकते हैं, या फ्रेश होके जैसे आपको ठीक लगे. आप ऐसे 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. और इवनिंग में सोने से पहले या जैसे आपको टाइम मिले 6 बजे 7 बजे, यू कैन प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन. दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हर होलीनेस डॉक्टर श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने सहज योगा की शुरुआत की 5 मई 1970, और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में 150 से ज़्यादा देशों में ये मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है, और लोग इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं. तो शी हर सेल्फ इज़ अ डॉक्टर. शी हैज स्टडीड मेडिसिन एंड साइकोलॉजी. उनको 2 बार नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, नॉमिनेट किया गया था. मानव रत्न अवार्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उससे भी उनको नवाजा गया है, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उनके नाम पे है. द बेसिक थिंग इज शी इज़ डूइंग शी हैज़ डन दिस वर्क फॉर द होल ह्यूमैनिटी. अभी सिर्फ मेडिटेशन करते हुए 2-3 चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम मोस्टली मेडिटेशन करना क्यों नहीं चाहते. बहुत सारे टाइम पे हमारे अंदर ये आता है कि नहीं, ये अभी टाइम नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन हमने देखा कि क्या क्या बेनिफिट हमारे एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट होते हैं. हम लोगों ने भी एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन किया था, एंड नाउ वी आर डूइंग गुड इन आवर लाइव्स. वी हैव गॉट गुड करियर्स, वी हैव स्टडीड वेल, वी हैव एक्सेल्ड वेल इन आवर स्टडीज़. तो ऑब्वियसली ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए शुरू करना. एंड ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन करते हो तो आप आपका लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, आप कुछ बाबा बनेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन एंजॉय योर लाइफ बाय डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. सो इसके लिए नॉट नेसेसरी कि आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत सीरियस पर्सन होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता. रादर यू एंजॉय योर लाइफ कंफर्टेबली. और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेडिटेशन के लिए कौन टाइम देगा. ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को देने खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छा पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन बनने के लिए, हमारे लाइफ में बैलेंस लाने के लिए सिर्फ 10 मिनट देना इतना कुछ हार्ड नहीं है. तो जो पर्सन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, दैट पर्सन obviously cannot get anything from the time which he spends unnecessarily. Okay, तो ये जानना जरूरी है कि सिर्फ 10-15 मिनट मॉर्निंग इवनिंग इतना ही टाइम आपको देना है. और मेरी आदतें अच्छे नहीं है, कुछ लोगों को लगता है तो इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं करूँगा. तो ऐसा भी नहीं है. जो कुछ भी आदतें, हर एक इंसान में अच्छी बुरी आदतें होती है, लेकिन उन आदतों को आपको पता है आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो आप उनको मेडिटेशन से या बाकी सब चीज़ों से, रेगुलर प्रैक्टिस से छोड़ सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो. सो ऐसे कुछ मिथ्स है जो आप लोगों को अगर लगता हो कि दे आर नॉट अलाउइंग टू मेडिटेट, सो सर्टनली यू कैन ओवरकम देम. आई एम गोइंग टू शेयर a link here for if you want to learn more about and know more about this meditation. ये लिंक मैं आप लोगों को आपके टीचर्स के पास शेयर करता हूँ. आप वो आपके ग्रुप्स में आपको भेजेंगे. जस्ट फिल इट, जब फीडबैक करके आप इसको फिल कर दीजिए. आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप ये 2 वेबसाइट्स को रेफ़र कर सकते हो, www.sahajyoga.org.in and www.freemeditation.com. You can refer to these websites. आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलेगा. There is one more YouTube channel, लर्निंग सहज होगा. ये यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आप कुछ लर्निंग के लिए वीडियोस देख सकते हो. और टोल फ्री नंबर है 1800-2700-800 फॉर योर हेल्प. ऑब्वियसली अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट आपको ये मेडिटेशन करने के लिए कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, कुछ भी लेवल्स या क्लासेस अटेंड नहीं करनी है. सिर्फ ये इसको सीख के आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल. इतना ईजी है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स.
आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो यू वेलकम। आशीष सर भी फिर से ज्वाइन हो है हमारे साथ, तो वो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। yes dear students, now you can speak, you can unmute and you can ask any questions if you have. Okay, no questions are there. If anybody can share experience of today's session, it would be my pleasure to know how this session was. आपको मेडिटेशन करके कैसा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। I know it's too late, but we can have 1 or 2 minutes. Okay, I think there is no question as such. Once again, I'll request all the participants to practice this meditation. From the bottom of our heart, we are requesting you, because we have got so many benefits and you can also get benefited and enjoy your life a lot. Thank you. Thanks a lot. I'm thankful to the organizing team for this opportunity. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for giving us a brief idea about meditation. How can we use meditation and improve our lifestyle? So, students, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ छोटे छोटे से चेंजेस अगर हम अपने लाइफ के अंदर लाते हैं एंड उनको कंसिस्टेंसी के साथ हम डेली बेसिस पे वो चीज़ें अगर अपनी लाइफ के अंदर करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। 1 day 2 day